دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ سب سے ہائی وولٹیج ٹاکرا جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان ورسز انڈیا۔ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور بریک پر جانے سے پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی تو مجھ پر ایک شکوہ کیا گیا تھا کہ میں معین خان صاحب کو بولنے نہیں دے رہا ہوں، تو معین خان صاحب میں بول سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں سر؟ بالکل، آپ سوال کریں، جواب پورا سنیے گا۔ جواب تو میں پورے سن رہا ہوں سر۔ اور ادھر آپ آسما کو دیکھیے، وہ جو ہے نا وہاں پہ پاپ کارن کھانا بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا، حالانکہ نہ بھی ٹاس ہوا ہے نہ میچ شروع ہوا ہے۔ آسما آپ نے تو ابھی سے پاپ کارن کھانے شروع نہیں، میں نے پاپ کارن نہیں ابھی شروع کیے، وہ کھانے ابھی وہ میں نے رکھے ہوئے میچ کے لیے، ابھی تو میں نے منچنگ شروع کی ہے۔ اچھا، منچنگ شروع کی ہے۔ جو ٹینشن بڑھتی جاتی ہے نا، ہاں جو والی ٹینشن بڑھتی ہے نا، پھر ہم ساری چیزیں گھر کی کھانے والی لے آتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں، بیکاز ٹینشن میں کھاتی زیادہ ہوں۔ تو ابھی آپ لوگ بندوبست کر لیں، آپ لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں بندوبست کیا ہوا، چاہیے تو یہ 7 بجے چائے شائے پکوڑے آپ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ لگتا ہے راشد نے کچھ نہیں کھانے پینے کو دیا آج۔ آسما، شیروں کی لڑائی خالی پیٹ ہوتی ہے، تو آج ہم اس لیے خالی پیٹ ہے، آج ہم پہ بھی پریشر ہے۔ میں آپ یہ بھی بتائیں، شیر کے لیے کھانا شیرنی لاتی ہے۔ صحیح بات ٹھیک ہے، منیزے آپ کیا کہیں گی؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ میرے خیال میں نیٹ کا ایشو ہے، اس لیے منیزے تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پراجا صاحب، اب آدھے گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ٹاس ہونے میں، تو آپ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ جو ٹیم ٹاس جیتے گی بیٹنگ کرے گی بالنگ کرے گی؟ کل جو میں نے دونوں میچ دیکھے، میرے نزدیک دونوں ون سائیڈڈ تھے اور پہلے والی ٹیم جو ہے نا وہ ہاری ہے۔ صحیح، مطلب ہے پہلا میچ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کا بڑا میچ تھا، تو ساؤتھ افریقہ 119 اگر بنائے تو میں ون سائیڈڈ میچ ہی کہوں گا۔ ویسٹ انڈیز کا میچ بڑا ہی ون سائیڈڈ تھا کہ سیکنڈ لویسٹ ان کا سکور بنا، انہوں نے بھی پہلے بیٹنگ کی، تو پہلے بیٹنگ کرنے والی کل تو دونوں ٹیمیں ہاری ہیں۔ آج کا جو میچ تھا میں لیٹلی اس کو فالو نہیں کر سکا، کیونکہ جو اس نے شری لنکا کے خلاف بنگلہ دیش نے اچھا فائٹنگ سکور تھا، 170 پلس بنایا، ابھی کیا ہو رہا ہے مجھے علم نہیں ہے۔ تو پہلے جو ٹیم کل تو جو کھیلی وہ ہاری، تو اس لیے آج یہ فیکٹر ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے والی ٹیم ہار رہی ہے، یا تو وہ پچ بڑی تیز ہے یا انسرٹن پچ ہے۔ حالانکہ ساؤتھ افریقن کل کہہ رہے تھے ڈیو فیکٹر کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کیونکہ سیکنڈ اننگ میں جو بالنگ کر رہی ہوتی ہے ٹیم، اس کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ کل تو سیکنڈ اننگ والے جو بیٹنگ کی جنہوں نے آ کر، وہ کم از کم وہ جیت گئے، اس لیے بیٹنگ کرنے والا جیت رہا ہے، بالنگ کرنے والا ہار رہا ہے۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آج ٹاس جیتے ٹیم، اس کے ذہن میں یہ فیکٹر ضرور ہوگا کہ جی جو دوسری، چونکہ وہ ڈیو ہے تو ڈیو کی وجہ سے شاید وہ گرپ نہیں رہتی، یہ پرانا فیکٹر ہے، تو اس وجہ سے جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ ضرور یہ ذہن میں رکھے گی۔ لیکن بہرحال پریشر تو ہوتا ہے، پہلی اننگز میں جو سکور اگر اچھا کر گئے تو دوسری ٹیم پہ بہرحال پریشر ضرور آتا ہے، اور پہلی ٹیم اگر دب گئی، ہائی وولٹیج میچ خراب ہو رہی ہے انڈیا پاکستان میچ کی۔ ایک چیز بہت پریشر میں آج بہت پریشر، ہم سب پہ پریشر ہے لیکن پراجا صاحب پہ زیادہ ہے۔ ایک چیز پراجا صاحب نے ابھی، ہم جب بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے کہ معین بھائی سے سوال کیا کہ جی کچھ اگر ہار جاتے ہیں تو چھپ چھپا کے اور اس میں کیوں آتے ہیں، سو یہ وہ پریشر ہی ہے جو ہم ان پہ ڈالتے ہیں، اور ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے ٹاس کے بعد، شاید موقع بھی نہ ملے اور میچ کے بعد، کہ وہ پلیئرز ہیں وہ اپنا 100% دیں گے۔ ہم ایز اے کرکٹ فین اور اپنا دیکھنے کے حد سے اس چیز کو ایکسپٹ کریں، ہار کو۔ فواز صاحب، جبھی تو وہ گانا بنایا تھا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، بناتا ہے، لیکن پتہ ہے ایسا قوم بھی دیکھا جاتا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ان کی فیملیز کی پکچرز ڈالتے ہیں یا کوئی ایسی چیز، تو یہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ایز اے نیشن ہمیں ایکسپٹ کرنا، ہار کو بھی اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ سر، اس میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہار اور جیت امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ آپ نے فائٹنگ کی یا نہیں کی۔ اگر جو ہے وہ پتہ کیسے چلے گا، وہ فائٹنگ کا پتہ، دیکھیں نا کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے، بعض اوقات آپ کا بہت برا دن ہے، آپ کل ویسٹ انڈیز 50 پہ 55 پہ آؤٹ ہو گئی، اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی فائٹنگ نہیں کی، جان بوجھ کے آؤٹ ہو گئے، اس کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
सो ये जज्बे पे अगर आप किसी के आप डाउट करेंगे सो वो थोड़ा सा गलत होता है। फवाद भाई ये क्यों नहीं हो सकता कि इंडिया हार जाए? बात ये हो रही नहीं, है। इंशाल्लाह इंडिया हारेगा। हमें दूसरी चीज के लिए भी लोगों को नहीं देखिए, कौम कहती है ये नहीं बोलो कि पाकिस्तान हारेगा और ये नहीं बताओ पाकिस्तान हार देखिए गया। ना, हम अगर कौम को ये नहीं बताएंगे, ये आपकी हमारी ड्यूटी है ना कि हम उन्हें दूसरी पिक्चर के लिए भी तैयार करें। सो वो बाज़ वक़्त होता है कि हम इमोशंस में इतने ज्यादा एक्साइटेड और इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हमें ये ख्याल कम रह जाता है कि अगर दूसरी तरफ हो गया तो लोग फिर लोग सारा कुछ जो हिसाब किताब है वो प्लेयर्स के साथ करते हैं। सो आगे वर्ल्ड कप पूरा चलना है और हमने ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो हमें खुदा ना खास्ता अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता तो उसे खुश दिली से एक्सेप्ट करना है। मुनीज़े, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आपकी आवाज हमेशा से साफ आ रही थी, मेरी आवाज का कुछ मसला था, मगर एक सही। सवाल चले, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब जरा सिर्फ इतना बताएं, आपका इंडियन प्लेयर्स में कौन सा बेस्ट प्लेयर है? आप किसको सबसे बेस्ट समझती हैं इंडियन टीम में? विराट कोहली। विराट कोहली? विराट कोहली। मतलब आप थक करके ओपनर ही उठाती हैं? अच्छा, 6 नाम पूछे इनसे इंडिया की टीम के प्लेयर। मुश्किल सवाल। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अरे वो पहले मोइन भाई का सवाल तो आपने सुना ही नहीं। वो कह रहे हैं 6 प्लेयर के नाम बताएं इंडिया के। नहीं, देखिए, सवाल पूछने के लिए तो हम बैठे हुए ना, मोइन साहब तो जवाब देने। तो मोइन साहब से मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि देखिए, माजी के अंदर हाल ही में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं रही, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलना होगा इस बार अगर पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस उसने देनी है? आपके नजरिए में फिल फॉर करना बहुत जरूरी होगा, द टॉप 5 things that the Pakistan team should. आई थिंक इट्स अ टीम गेम। यू कांट से कि आपको 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फोकस करें। आई थिंक सबसे चीज होती है, देखिए, टॉस वाइटल होता है। टॉस अगर आप हार भी जाएं तो डजेंट मैटर। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज है, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड एग्रेसिव, नॉट एग्रेसिव के विदाउट एनी प्लान एग्रेशन आप दिखा रहे हैं तो वो भी बेवकूफी होती है। आई थिंक एग्रेसिव विद द प्लान, उसकी राइट एग्जीक्यूशन हो। You should be focused on what you want to do, what you want to achieve, to get the best result for your team, अगर वो कहते हैं ना कि अगर जज्बात में आके आपने गलत फैसले कर लिए, एक शॉर्ट पिच बॉल को आप ड्राइव मारने चले जाएंगे तो नेचुरली आप आउट हो जाते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू दी बॉल खेलें और जो बॉलर्स हैं वो अपने ओपोनेंट को ऑफ कोर्स देखें, उनकी जो वीकनेसेस हैं, जो उनकी जहां पे वो बेहतर खेलते हैं वहां पे आप बॉलिंग ना कराएं। T20 में आपको एज अ बॉलर यूनिक आपको वेरिएशन का इस्तेमाल करना होता है, और वेरिएशन में अगर वही वेरिएशन आपकी गलत जगह पे गिर जाती है बॉल तो उस पे छक्का भी पड़ जाता है आपको, और सही जगह पे गिर जाए तो आप विकेट भी ले जाते हैं। सही। तो आई थिंक असाबी जंग तो है, लेकिन दोनों टीमों में मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को मैं इसलिए बेहतर टीम करार दे रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अच्छी है, तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए और हर प्लेयर की जो कहना चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल 11 की 11 प्लेयर्स की अगर सोच ये होगी कि मैंने कुछ अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है तो यकीनन उसमें से 3 या 4 जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो टीम फिर जिता देते हैं एट दी एंड। तो एक टीम गेम है, मेरा ख्याल है कि सबका प्लान एक होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि मैंने अपनी टीम के लिए क्या करना है, अपनी टीम के लिए क्या करना है। अली, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल, आप पूछ लें। असल में मैं शहरी की तरफ देख रहा था, बड़े इन्हमाक के साथ वो मोइन भाई की जो है ना गुफ्तगू को सुन रहे थे, तो मैंने कहा इनसे पूछ लूं, मतलब वो क्रिकेट की वो अपने बेटे के लिए सोच रहे थे कि मतलब उनका बेटा एकेडमी में जाएगा और ट्रेनिंग लेगा मोइन खान साहब से। क्या मोइन भाई का तजिया इस वजह सुन रहा हूँ शहरी ने मोइन खान को टारगेट किया हुआ है। शहरी ने लगता है मेरी एकेडमी पे छापा मार रहा है। नहीं, मैं मोइन भाई काम तो नहीं होते ना, खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन भाई का तजिया अच्छा, मेरा सवाल ये, मोइन भाई, आप सितारों पे यकीन रखते हैं? अब आप फिर देखें ये गलत मौजू को छेड़ नहीं आप। नहीं, मतलब भाई कितने नजूमी तो होते हैं, बैठ के तो निकाल रहे होते हैं फाल वाल के पाकिस्तान इंडिया जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। वो अगर क्रिकेट की बात पे फॉल और निकल रही होती है तो वो भी टिप क्रिकेटर से ही लेके जाते हैं। सही है। हाँ, ये अच्छा, ये मेरा तो शहरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं मोइन भाई की बात क्यों गौर से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद हमें जो तजिए सुनने को मिलते हैं वो उससे अलग होते हैं, क्योंकि आपको हर चाय के होटल पे
नाई की दुकान पे ऐसे आपको एक्सपर्ट मिलते हैं जो पूरा मैच बता देते हैं कि क्यों हारे हैं। तो ये जो तज्जिए होते हैं ना, ये अभी हम सुन लें, ताकि ये टेक्निकल बात हो रही भैया है। आप रिकॉर्डिंग 1 घंटे की करते हैं, कॉन्टेंट 40 मिनट का मोइन निकालते भाई, हैं, और क्योंकि की बात हमारे यहाँ मुल्क में मैं ये देखता हूँ कि जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद आपको हर बंदा जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट मिलेगा। उसके पास ऐसे तज्जिए होंगे कि वो उसने गलत शॉट खेला, वो चाहता तो ये खेल सकता था, शायद वो इतना आसान समझ रहे होते हैं कि जी ये बहुत ईजी है। तो वो जो चीज होती है ना, वो अलग ही इंटरेस्ट होती है। इस वजह से पहले हम मोइन भाई की बात सुन लेते हैं, बाद में उनकी तो सुननी है हमने। असल में बेटा नहीं भेजेंगे एकेडमी में। मैं बिल्कुल भेजूंगा, वो लेकिन छोटा है थोड़ा असल बड़ा। में बात यह है कि वाकई हकीकतन जब हम खेलते थे और आज हम बैठ के कमेंट करते हैं तो ये काम हमें इजी लगता है, बिल्कुल सही। बट जब वहां पे आप पिच पे मौजूद होते हैं, आप बैटिंग कर रहे हो, तो आपका फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टाइम होता है कि आपने बॉल पिक करनी, देखनी है Definitely. और एग्जीक्यूट गैप में करनी है, आउट भी नहीं होना, रन भी बनाने, सारी चीजें होती है ना। तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल का प्रेशर होता है वहां पे। सही। तो एक आम आदमी को जो पिच में नहीं, आप अगर आपने क्लब क्रिकेट नहीं बिल्कुल भी खेली। खेली हो कोई बात नहीं, आप गली में भी क्रिकेट खेल रहे हो तो आप पे एक प्रेशर होता है, यार मैंने रन बनाने, मैं आउट ना हो जाऊं, यू नो, सही। एक वो प्रेशर, आउट ना होने का प्रेशर के साथ साथ रन बनाने का भी प्रेशर होता है ना, मैं रन Exactly. बनाने अपनी टीम के लिए एक टारगेट सेट करना है। तो लोगों को बजाय टीवी के ऊपर बहुत easy इजी लगता है कि यार बॉल आई, यूं आके स्विंग भी हो गई, हाँ। वो एज लेके चली गई, भाई उसको ये नहीं पता चलता है वहां पे ये कट में कितने चला टाइम में जाए। हुआ, नैनो सब सेकंड्स कुछ, का काम होता कितने है। कितने कितने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में काम हुआ है, यू नो। तो इसके लिए नेशनली प्रैक्टिस होती सही। है और प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। फवाद भाई, जिस तरीके से बात हो रही है कि बहुत इजी है कि तज्जिया करना, लेकिन वही वाली बात है, ग्राउंड का प्रेशर बिल्कुल ही एक अलग है। देखिए बिल्कुल आप यही एक फर्क होता है। जहां तक बात कर रहे थे कि जैसे शहरी ने भी बात की कि जी बहुत ज्यादा हर आदमी बात कर रहा होता है खेलों पे या क्रिकेट के मैच के बाद, तो अगर आप दुनिया भर में देखें जो फुटबॉल का फैशन है, इंग्लैंड में आप देखें क्लब जो अपने क्लब्स को फॉलो कर रहे होते हैं, किस तरह से मैंने खुद देखा है कि इसी तरह से वो बहस कर रहे होते हैं और हर आदमी एक्सपर्ट होता है। सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के मैच को इस तरह से कवरेज की जाती है तो हम समझ रहे होते हैं, लेकिन जो भी किसी भी खेल को अगर फॉलो कर रहा होता है सो वो एक्सपर्ट की तरह ही बात कर रहा होता है। मोइन भाई अगर किसी शादी में भी चले जाएं तो सारे सवालात उनसे हो रहे होंगे। सही। सो बिकॉज आप उस पैशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, बिकॉज स्पोर्ट्स को जो फॉलो करता है वो बिल्कुल कहीं और देख नहीं रहा होता। सही। रिजवान, जी मैं बस ये इस तरफ आना चाह रहा था कि अब जैसे हमने देखा कि क्योंकि 3 साल गुजर गए इस गवर्नमेंट में, लेकिन अब जो एक तब्दीली आई है और उसमें खासतौर पे रमीज राजा साहब जो चेयरमैन बने हैं, तो अब बहुत सी उम्मीदें उनसे जो है जोड़ ली गई हैं। और अब मुझे याद है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब हर दफा हम बात करते हैं और ये खैर तारीख बदलने के लिए होती है, मुझे उम्मीद है कि आज तारीख बदलेगी। हम अगर नहीं जीत सके पहले वर्ल्ड कप किसी मैच में इंडिया के खिलाफ, तो आज इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं भी होती तो ये डिबेट्स हमने हमेशा ही देखी है और हमेशा जो तज्जियों की आप बात कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी अब तज्जिए कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर, क्लब लेवल पर, या जो अब जो हम पीएसएल की बात करते हैं, शहरों की टीमों की बात करते हैं कि कैसे बेहतर हो सकती है, उसमें बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों की बात की जाती है। लेकिन वो रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो अभी तक बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो मिला नहीं है, लेकिन पैशन अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल उम्मीदें दिल तोड़ा है किसी ने, ठीक है ना। अली, यहाँ पर एक ब्रेक का एक सवाल, जी बिल्कुल कर लें जल्दी कर लें। हाँ अली, एक सवाल पूछना चाहती थी कि ये मोइन भाई से खास करके और फवाद साहब से भी, कि ये जो ओपनिंग पेयर होता है, जो पहले आता है, सबसे पहले जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि एक आउट तो उसके बाद में लाइन लग जाती है। जाहिर है कि वो एक नफसियाती दबाव तो होता ही है, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ कि इसमें कहा जा रहा है कि शायद शोएब मलिक और हफीज जो है वो ओपनिंग बैट्समैन होंगे, तो इस हिसाब से बताएं कि कितना कामयाब हो सकता है ये पेयर। सिर्फ एक चुटकुला दे रहा हूँ, हमारे यहाँ भी यही होता है, एक वजीर खजाना तब्दील होता है फिर लाइन लग जाती है। नहीं आसमा, आज ऐसी कोई खबरें नहीं है। मेरा ख्याल है जो ओपनिंग स्टैंड चल रहा है पाकिस्तान का जो पेयर, वो रिजवान है और रिजवान के साथ हमारे कैप्टन बाबर आजम है और वही करेंगे। अभी तक ऐसी कोई खबरें तो नहीं गर्दिश करी कि शोएब मलिक से या हफीज से ओपन करा ले। मेरा ख्याल है ये दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उनको यही रोल दिया हुआ है कि ये मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ओपनिंग जो हमारा पेयर है वो सेट है। चलें ठीक है, अच्छा पेयर। ठीक है मोइन भाई, आपका हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा आपका भी बहुत शुक्रिया, चूंकि आपको प्रोग्राम से क्विट करना है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉस भी होना है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे।
تو جوش جذبہ اور جنون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور 6:30 بہت جلد بجنے والے ہیں، جس کے فوری بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹاس ہوگا اور ٹاس کون سی ٹیم جیتے گی، اس کے بعد تھوڑا بہت ڈیسائیڈ کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ کس ٹیم کو آج جو ہے وہ ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے، کیونکہ ڈیو فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے آج کے میچ کو لے کر۔ تو اب دیکھنا یہ کہ پریڈکٹ اوور آل یہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم بڑی مضبوط ہے اور پلیئرز جو ہیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان کا مقدر بنے گی۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ فواد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فواد صاحب، اب ٹاس تھوڑی دیر میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو انڈین بولرز کے مائنڈ میں کیا ہوگا کہ کس حد تک ہم پاکستانی ٹیم کو ریسٹرکٹ کریں تاکہ ایزیلی میچ ون کر سکیں؟ دیکھیں، سچویشن پہ اور وکٹ کو دیکھتے ہوئے جو بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ معین بھائی نے ایز اے کوچ کام کیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے بولنگ کے لیے اور بیٹنگ کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اتنے کر یہ ایک ٹارگٹ ہے جس پہ ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ وہ ہماری بیٹنگ چیز کر سکتی ہے۔ سو یہ پلان کر کے، اور پاکستان بھی اگر ہو تو اسی طرح پلان کر کے جایا جاتا ہے۔ اس کا اس پہ نہیں آپ دیکھ رہے ہوتے کہ جی ڈیو گرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، 180 بھی کر دیں۔ سو وہ ڈیو پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کرتے، آپ یہ وکٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ آپ کے ایکسپیرینس پہ ہوتا ہے کہ جی کس قسم کی وکٹ ہے، اس پہ کتنا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کیا جا سکتا ہے، اس کے بیسس پہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ سو وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں، اب آپ اگر بنگلہ دیش شری لنکا کا میچ دیکھیں تو 171 ایک ایسا سکور لگ رہا تھا کہ جی نہیں بن پائے گا۔ اب دیکھیں شری لنکا آلموسٹ جیتنے کے قریب ہے۔ تو ہم نے کل وہ 2 میچز بھی دیکھے تھے کہ جہاں پر 120 کا سکور بھی جو تھا وہ آخر تک جا رہا تھا 58۔ ہم ایک چیز کہلاتی ہے کرکٹ میں اڈیپٹیبلٹی۔ جب معین بھائی وغیرہ آسٹریلیا جاتے تھے یا نیوزی لینڈ جاتے تھے کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے ابھی جب آپ کھیلنے آئے یا باہر والے یہاں کھیل رہے ہیں تو جو وہ کنڈیشنز ہیں ان میں اس حساب سے آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے۔ سو ایز اے پروفیشنل وہ آپ کی جاب کا حصہ ہے۔ سو آپ ان کنڈیشنز کو آج کی دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن کریں گے کہ جی اتنا اسکور پہ ریسٹرکٹ کرنا ہے اور اس وکٹ پہ یہ اسکور بنتا ہے۔ ٹھیک ہے معین بھائی، لاسٹ وارم اپ میچ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ پاکستان نے لوز کیا تھا، اگینسٹ ویسٹ انڈیز جیت گئے تھے، انڈیا نے اپنے دونوں وارم اپ میچز جیت رکھے ہیں، یہ بھی پریشر ہوگا؟ نہیں، پریشر تو آف کورس ہے، پریشر اس سے بڑا پریشر ہی نہیں ہے نا کسی میچ کا۔ اچھا، یہ تو کہنا چاہیے کہ ہائیسٹ لیول آف پریشر ہوتا ہے، مدر آف پریشر آف کورس، بالکل واقعی ایسے ہی ہے۔ تو اس میں جو بات کی ہے ہم نے کہ فوکس اپنا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹاس کی بات ہو رہی ہے، ٹاس پہ دیکھیں انڈیا کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا پہلے بیٹنگ کرنا یا پہلے بالنگ چوز کرنا۔ ابھی جو سینیریو نظر آ رہا ہے ساری ٹیمیں جو ہیں وہ پریفر کر رہی ہیں کہ بھائی پہلے بالنگ کی جائے تاکہ بعد میں آرام سے چیز کر لیا جائے، کم ٹوٹل پہ آؤٹ کیا جائے، ٹارگٹ کم سے کم ہو اور ڈیو فیکٹر کا جو ہے اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو۔ فواد نے بولا تھا کہ انڈیا ہو سکتا ہے شاید بیٹنگ کرے پہلے، وہ صرف دکھانے کے لیے پاکستان کو۔ تو یہاں پہ اتنا ایزی نہیں ہوگا یہ ڈیسیجن کرنا بھی کہ پہلے لے لیں اور بعد میں اگر وہ میچ ہارتے تو ان کو ڈیو کی وجہ سے جتنی پھر لے دے کرنی پڑے گی ان کو ٹیم۔ یعنی کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹاس جیتے پاکستان تو پہلے بالنگ کرے، اسلام آباد والے کیا سوچ رہے ہیں؟ شوکت فراجہ سے پوچھتے ہیں۔ جی شوکت بتائیے، اگر پاکستانی ٹیم ٹاس جیت جائے تو پہلے بیٹنگ کرے یا بالنگ؟ پاکستانی ٹیم کو میرا خیال ہے پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے، ڈیو فیکٹر اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ان کو میکسیمم سکور کرنا چاہیے، فریلی ہٹ ماریں گے کتنا اسکور؟ کیونکہ دوسری اننگز اگر پاکستان کو بیٹنگ کرنا پڑی تو پھر وہ پریشر ہوگا مینٹین کرنے کا کہ آپ نے پر اوور اتنے رن ضرور سکور کرنے ہیں، اس لیے پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے، کھل کے کھیلیں، پازیٹیولی کھیلیں، کسی پریشر کے بغیر کھیلیں اور خوب ہٹیں لگائیں، کیونکہ انٹرٹیننگ کرکٹ انٹرٹیننگ اسی وقت ہوتی ہے جب چھکے لگ رہے ہیں، چوکے لگ رہے ہیں، اور پاکستان کی بیٹنگ میں لطیفہ یاد آ رہا ہے جو میں نے سنایا تھا۔ اچھا صاحب، ویسٹ انڈیز میں کل انٹرٹیننگ کھیلنے کے چکروں میں ڈیفینڈنگ چیمپئن میں 55 پہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ نہ پرووائڈ کرے کہ 100 کے اندر آؤٹ ہو جائے۔ معین بھائی بریک پہ سنا رہے تھے کہ ایک پاکستان کے کرکٹر ہیں، انہوں نے جا کے ہٹنگ کی اور جلدی آؤٹ ہو گئے، تو جب ڈریسنگ روم میں آئے تو معین بھائی نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم نے مطلب اس طریقے کی حرکت کی؟ تو انہوں نے کہا چونکہ میری مدر تھی تو میں نے کہا والدہ کی دعائیں ہوں گی، تو انہوں نے بولا بھائی جو سامنے والا کھیل رہا تھا اس کے بھی ساتھ بھی ماں کی دعائیں ہیں۔ وہ یتیم نہیں تھا۔ اچھا، اس میں علی میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا۔ شاہد آفریدی ایک ایسا ماڈل کریکٹر ہمارے سامنے رہا ہے
कि ऑलवेज एंटरटेनिंग, उसने बड़े मैच भी बड़े जितवाए, अनलाइक ऑफ सचिन तेंदुलकर कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत रन बनाए, बहुत अच्छा खेले, इज अ ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन जब भी वो मैच फंस गया सचिन ने कभी विनिंग स्ट्रोक नहीं लगाया। शाहिद अफरीदी आउट भी होते रहे, बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल थे ना, शायद कंफर्म नहीं होता था। एक हद तक एंटरटेनमेंट की बात जो है वो प्राज साहब की ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये टीम गेम है, टीम की कॉम्पोजिशन होती है, हर तरह के प्लेयर होते हैं इसमें। एक ही नेचर के सारे प्लेयर हो जाएंगे तो कल आपने देख लिया होगा जो वेस्ट इंडीज का असर हुआ है, उस टीम में सारे ही हिट मारने वाले प्लेयर थे, मौजूद थे, और 55 पे डेयर हो गई। तो ये इस तरह भी आप टीम को कंपोज नहीं करते, आपके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप बिल्कुल बैलेंस टीम बनाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जिस नेचर की टीम है उसमें हमारे ओपनर बहुत ही अच्छे ओपनर से, टेक्निकली देखा जाए बाबर आजम का आप स्ट्राइक रेट देख लें, उनकी कंसिस्टेंसी देख लें, उनकी टेक्निक देख लें, आपको नजर आता है कि उसको नया बॉल खेलना आता है, बहुत लेट खेलता है बॉल, इसी तरह रिजवान चढ़ाई करके खेलता है, बॉलर के ऊपर चढ़ के खेलता है, ताकि वो अटैक कर सके, डोमिनेट कर सके बॉलर को, अपने आप को जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखा सके ताकि आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो जाए। इसी तरह नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं फकर की अपनी एक नेचर है, फकर हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसके अपने एक जोन्स है जहां पे वो परफेक्ट हिट्स मारता है, एक बहुत सेंसिबल प्लेयर है, उसको पता है कब हिट मारनी है, कब सिंगल लेना है, कब प्रेशर से रिलीज होना है या रिलीज करना है प्रेशर को, शोएब मलिक खुद एक बहुत ही कहना चाहिए एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो ये तमाम डिफरेंट नेचर के प्लेयर्स होते हैं, इनसे एक कॉम्पोजिशन बनती है। तो राजा साहब अगर सारे शाहिद अफरीदी टाइप बैट्समैन होंगे तो फिर जैसी हमारी परफॉर्मेंस या तो 50 पे आउट हो जाएंगे या 500 बना लेंगे, में से 2 मैच ही जीतेंगे। बात ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि पहले खेलें, उस वक्त कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपने हर ओवर में 8 रन बनाने हैं, 10 रन बनाने हैं, 7 रन बनाने हैं। जिस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है वो उसके मुताबिक ही खेलता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बाबर आजम से कि आते ही पहले ही ओवर में 36 रन बना जाए, जो उनकी टेक्निक है, जैसे हफीज हैं, शोएब मलिक हैं, अपनी अपनी टेक्निक से खेलते हैं। लेकिन फखर जमान को मैं कहूं कि जी आप रोक के खेलो, हर बॉल पे सिंगल लो, आप उठा के नहीं मारो, तो फिर फखर जमान वहां कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो नेचुरल उनका प्लेयर है वो खेलने दें, उन्हें कहें कि पॉजिटिव माइंड से खेलें, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, हार जीत अपार्ट एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाए, क्रिकेट जीत जाए, जो मुल्क हारता है हार जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें मैं जरा अली ऐड करना चाहूंगा। शौकत पराचा साहब, आपकी जो राय है यकीनी तौर पे बड़ी जबरदस्त राय है, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग के हवाले से बात की जाती थी कि ये बेहतर नहीं है, प्रेशर में आ जाती है, क्लैप्स कर जाती है, आज भी किसी हद तक हम बात कह सकते हैं, लेकिन वो ओडीआई में 50 ओवर्स में तो चला। मेगा टाकरे का आगाज हुआ चाहता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। जैसे कि यहां पर बात हो रही थी हमारी ट्रांसमिशन में और मोइन भाई मुसलसल यही बात कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो उसको बैटिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। तो मोइन भाई आपके अरमान पूरे हो गए, टॉस पाकिस्तान जीत गया और पराजा साहब के अरमानों में पानी फिर मेरा ख्याल है टेक्निकली पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बिल्कुल देखें अच्छा है। उसकी वजह ये मेन कि हम जो बात कर रहे थे किसी भी कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल, और यही बात विराट कोहली ने भी बोली कि मैं टॉस जीतता तो मैंने पहले बॉलिंग फील्डिंग करनी थी, बिकॉज कि आपको जब प्रेडिक्शन का पता है कि ड्यू आनी है और ड्यू के साथ आप ये वाला डिसीजन कर लेते कि पहले आप बैटिंग करने चले जाते और मैच हार जाते, आपका जीना आराम कर देना था कौम ने पूरी ने, और यही हुआ है हमेशा, प्रीवियसली भी हमने देखा बहुत सारे। आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन ऑफ बाबर आजम कि एक आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, आप एक कम टोटल के ऊपर आउट कर सकते हैं, और इतना इजी नहीं होगा। इंडिया ने दोनों मैच चेस करके जीते अपने प्रीवियसली जो खेले उन्होंने, तो उनको टारगेट सेट करने की ऐसे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा कि टारगेट क्या सेट करना हमने, और पाकिस्तान की इतनी टॉप बॉलिंग है, ड्राई कंडीशन होंगी पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए, इजी होगा बॉल को ग्रिप करना। वो अलग बात है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में रोहित शर्मा या विराट कोहली आके आउटस्टैंडिंग एक इनिंग खेल जाते हैं कोई, वो अलग बात है। लेकिन एडवांटेजेस अगर टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। बॉल ड्राई होगा तो बॉल ड्राई जब होगा तो ग्रिप अच्छी होगी, तो आप सही जगह बॉल लाइन लें तो अपनी एग्जीक्यूशन अच्छी कर सकते हैं उसमें। फवाद आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, विराट ने भी कह दिया कि हम भी यही करते हैं, और जैसे मोइन भाई बात कर रहे हैं कि किसी के लिए भी इस मैच में डिसीजन को बहुत ही ब्रेव डिसीजन जैसे कहा जाता है लेना आसान नहीं होता।
बिकॉज आपके बाद में वो गले पड़ जाता है। सही। जिस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान पे या बाबर पे है, उससे ज्यादा कोहली पे है, क्योंकि बात सारी ये हो रही है कि इंडिया ऑन पेपर अच्छा है, इंडिया को जीतना चाहिए। सो वो अगर नहीं कर पाते हैं, जिस तरह के वो इश्तिहार या उनके जो भी कुछ हो रहा है, हमसे ज्यादा अपनी टीम पे उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि उन्हें जीतना ही जीतना है। सो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनपे बहुत ज्यादा सवाल होगा। तो इसीलिए उनका भी यही कहना था कि जी हम भी यही करते, तो बाबर ने कहा तो टॉस हमारे हक में निकल आया है, जो हम सही। डिसीजन लेना चाह रहे थे वो हो गया। सो अब हमें जाके वहां खेलना है और बेहतर खेलना है। शायरी, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या टारगेट सेट करना चाहिए पाकिस्तान को कि इंडिया को कितने टारगेट पर जो है वो मैच? देखिए जी, दुआ तो ये है कि 200 का टारगेट जाए और ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं सॉरी, हम वो पहले वो बैटिंग कर रहे हैं और हम चेस कर रहे हैं, हम टारगेट नहीं, हमें 100 से कम पे हम ये देखिए ये होता है प्रेशर। एक मिनट, ये देख ले ना खेलने वालों पे कितना प्रेशर है, खेलने वालों का क्या होगा। तो इन्होंने 200 बोला, मुझे यहाँ पर जाने से नहीं, देखिए 200 अगर वो कर भी ले तो हम उसको 15 ओवर में चेस कर दें। 15 ओवर में अगर आपने देखा शौकत भाई कह रहे हैं बात का मान रखा है। देखिए बात ये शौकत भाई ने कहा एंटरटेनिंग होना चाहिए, तो एंटरटेनिंग तो तब होगा, एंटरटेन हो जाएगा। ज्यादा एंटरटेन होगा। नो डाउट मोइन भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रेशर बहुत है। और जब मैं टॉस देख रहा था उसी वक्त प्रेशर था, प्रेशर बहुत है। लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान की अपना बेहतर हो, हम जीतें और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारी उम्मीद भी यही है। और टारगेट चाहे इंडिया जितना ही बना ले उसको चेज हम करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी प्रेशर है जितना मुझ पे है जाहिर है उससे ज्यादा बेचारे प्लेयर्स पे होगा, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हम लोग जल्दी जल्दी टाइम कम है, मैं जल्दी आप से बताएं। कहूंगा कि देखें वो तो मैं तो कहूंगा कि 100 भी ना बनाने दें, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी मैच खेलने आए, सिर्फ हम ही नहीं खेल रहे। बड़ा one sided मैच ना करें, बिल्कुल नॉर्मल जो है ना वो बहुत 140 कर लेते। बैटिंग स्ट्रेंथ है। इसमें सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि जो बाबर आजम एज अ कैप्टन भी हमें देखना है अभी कि वो बॉलर्स किस मौके पर सही किस है, जगह पे ठीक लेकर है। आते हैं। और चलिए। अगर उनका फर्स्ट इनिंग है उनका एज अ बैट्समैन एक बहुत बड़ा एज अ जी राजा साहब, जल्दी बता दीजिए कितने स्कोर पे भारत को महदूद रखना चाहिए? भाई भारत को जितना मिनिमम हो, उधर से रोहित शर्मा ने खेलना है, विराट ने खेलना है, वहां राहुल ने खेलना है। और मतलब सेफ साइड बताए ना, आप क्या समझते हैं इतना स्कोर होगा पाकिस्तान इजीली चेस कर लेगा? भाई अगर स्कोर 160 से उनका ज्यादा हो गया तो फिर ड्यू हो जो कुछ हो, फिर हमारे ऊपर जो मैं मसला आ पहले जाएगा। बात कर रहा था कि हमें बैटिंग करना चाहिए। हाँ। अगर 160-70 के करीब पहुंच गया तो बहुत प्रेशर में हमारे लड़के खेलते हैं। ये नेचुरल प्रेशर है, ये मोइन खान खुद क्रिकेटर हैं, वो ज्यादा अच्छा क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन मैं एज अ एक स्पेक्टेटर की हैसियत से, मैं लंदन में फाइनल मैच था, वसीम अकरम ने टॉस जीता, वसीम अकरम ने फैसला किया, वो बिल्कुल टीम बैठ गई। हालांकि वो फैसला करने से पहले कहा जा रहा था कि नहीं बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन वो ना हुआ। प्रेशर में जब प्रेशर का मैच हो, और प्रेशर तो अभी 200 स्कोर का सामने आ गया ना, आप खुद प्रेशर में वो भूल गए कि पाकिस्तान ने बनाना है, इंडिया ने बनाना है। मैं 150 तक आउट करें उनको, 150 तक आउट करें। मैं समझता हूं कि फिर हमारे लिए सेफ है। जैसे ऊपर जाएंगे हमारे लिए मुश्किल पैदा होती रहेगी। हमारे पास पहले भी प्राचा साहब एग्जाम्पल मौजूद है। ये जो आपने एग्जाम्पल जिस मैच की थी, मैं खुद वाइस कैप्टन था। मेरा ख्याल है एज ए क्रिकेटर आज भी मैं कहता हूँ वो डिसीजन ठीक था कि हमने पहले बैटिंग की थी। और यही चीज अगर आप देख लें, आपको याद है जो अभी मैनचेस्टर में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था, पहले बैटिंग करके ओवरकास्ट कंडीशन थी, सब ये कह रहे थे ओवरकास्ट कंडीशन है, यहाँ पे पहले बॉलिंग करनी चाहिए। हमने जब बॉलिंग की तो हमने 300 रन बनवा दिए थे उस वक्त, और उसके बाद हम प्रेशर में आ गए थे। सही कह रहे हैं। आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है जब आपको प्रेडिक्शन का पता हो मौसम की, वहां पे आप ना चाहते हुए इस तरह का डिसीजन ले जाएं। और अगर बाबर यहाँ पे अभी बैटिंग कर लेते पहले और स्कोर नहीं कर पाते, मैच हार जाते, तो पूरी कौम ने जो है वो फिर जैसे आपने कहा था ना कि फिर हम कपड़े बदल के कभी हम दूसरे मुल्क से होते हुए पाकिस्तान घुस रहे होते और एक एक करके फ्लाइट पे आ रहे होते, तो इस सही। टीम का भी फिर वही एड में ये असर होना था। लेकिन शौकत, वैसे आपस की बात है, पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग नहीं की है, इसका ज्यादा अफसोस है? किस बात का अफसोस है अब आपको? मैंने लाइटर तो नोट पे आपको सवाल एग्जाम्पल दी ना, जिस डिसीजन को अभी भी मोइन खान कह रहे हैं कि उनका फैसला अच्छा था, लेकिन वो 100 के करीब कोई रन बने थे और बिल्कुल ही वो मैच बैठ गया था। हालांकि वो जो विराट की अभी बात की गई, विराट ने शायद इसलिए कहा अजीब, हमारा वो एक नेशनल बयानिया हो गया है कि हम कहते हैं पाकिस्तानी टीम जब सेकंड बैटिंग करेगी ना तो मसला हो जाएगा।
नहीं, ओडीआई में किसी हद तक बात हो मसला सकती है, इसलिए लेकिन हम T20 मसला में नहीं। होता है, हम इसलिए नहीं कह रहे कि देखे ना बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए कि बाद में प्रेशर, और अभी बात हुई थोड़ी देर पहले कि लाइन लग जाती है, वो लाइन तो लगती है ना, एक्सपीरियंस से। शौकत पाचा साहब, व्यूअर मतलब कह रहा वो हूं आपको, वो मैं तो ODIs तमाशाई में की 50 हैसियत ओवर्स से के बता रहा हूं मैचेस कि में ज्यादातर इस एग्जाम्पल्स तरह से हैं, होता रहा है। ऐसी एग्जाम्पल्स की वजह से ये कहना पड़ता है। लेकिन T20 में आप हमारे कम से कम जो 6 बैट्समैन हैं वो ऐसे हैं कि उनपे अब इस वक्त जो टीम है वो ट्रस्टेबल है, यानी अब ट्रस्ट कर सकते हैं आप। जो परफॉर्मेंस पिछले खासतौर पे बाबर आजम की और 11 बजे पता चलेगा। अरे भाई ट्रस्ट कर सकते हैं, ये तो दुआया कलमात है ना आपके कि क्रिकेट तो वो है जो ग्राउंड में खेली जाएगी, तब पता चलेगा। जैसे अली ठीक कह रहे हैं कि 11 बजे हम यही चाहते हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एंटरटेन करें, लोगों को खुश करें। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर, अब जाहिर है आप भी देखते हैं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सुबह से लेकर शाम तक डिप्रेशन होती है। अगर आज कौम को एक अच्छी क्रिकेट मिल जाए, पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आज का ट्रीट हो नहीं सकता पाकिस्तानी कौम के लिए। हम भी यही चाह रहे हैं कि 6-7 लड़के परफॉर्म करें, बॉलर परफॉर्म करें। 3 हमारे रेगुलर बॉलर हैं, बाकी तो आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखा हुआ है। चौथा बॉलर स्पेशलिस्ट है नहीं, अली हसन है, उसके बाद हसन अली हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है। एक बॉलर भी हमारा मैं समझता हूं जाती तौर पे कम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह रहा था कि 6 बॉलर है, मोइन भाई कह रहे हैं 6 बॉलर है, कम नहीं है, एक ज्यादा है बल्कि मलिक भी है, हफीज भी। मलिक भी है, 7वां बॉलर, 7 बॉलर है हमारे पास। 7 बॉलर, हाँ कराते नहीं हम भाई bowling, लेकिन ऑलराउंडर फिर भी। मैं तो मलिक को बैट्सता हूं, मैं हफीज को भी बैट्समैन समझता हूं। ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ गए ना। स्पेशलिस्ट जो बॉलर हैं 4 होते हैं यूजुअली, आज मैं 3 देख रहा हूं जो लिस्ट मैंने देखी। नहीं, शादाब और इमाद भी। चले शादाब भाई भी प्रेशर है, बॉलर ही है। हाँ। ठीक है। अब मोइन भाई जैसे कि अपना शौकत भी कह रहे हैं कि 150 पे बस महदूद रखना चाहिए भारत को, तो आप भी यही सोचते हैं कि मतलब 150 160 जो है वो चेजेबल होगा? देखिए ये अगेन करता है कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट 6 ओवर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, चाहे इंडिया सही। बैटिंग कर रहा हो पहले या हम बॉलिंग कर रहे हो पहले, तो इसमें 2 विकेटें अगर पाकिस्तान लेके जाता है तो आप 150 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की, तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। और अगर फील्डर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अपने बॉलर्स को और मिस किए चांसेस, तो ये इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, ये 160 प्लस तो आराम से बनाती है हर मैच के अंदर, ठीक है। सही। प्रीवियसली हमने देखा कि अभी लोएस्ट स्कोरिंग मैचेस हुए, तो लोएस्ट स्कोरिंग मैच उस सूरत में हुआ है जहां विकेटें गिरती गई। अगर विकेट नहीं गिरी, पार्टनरशिप्स लग गई और आपने चांसेस मिस किए, तो इंडिया की टीम ऐसी है ये 180 या 200 भी रन कर सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एंटिसिपेशन अच्छी रखनी पड़ेगी तमाम फील्डर्स को कि हर बॉल उनके करीब आ रही है या उनके पास आ रही है, तो आपको कैच पकड़ना पड़ेगा, अपने बॉलर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और बहुत कॉन्शियस होना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मोइन भाई कह रहे हैं बिल्कुल जी गुंजाइश नहीं है। जो जैसे मोइन भाई बात कर रहे हैं 150 160 इससे ज्यादा नहीं, चाहे कोई भी कंडीशंस बाद में हो, चेज करना आसान नहीं होता, आप पे प्रेशर होता है। जो मोइन भाई ने बात की कि पहले 6 ओवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम 1 या 2 आउट कर लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं पावर प्ले में, तो उसका हमें एक एडवांटेज होगा। और अब उम्मीद और दुआ यही है कि पाकिस्तान जीते। शहरी, अगर आपका प्रेशर रिलीज हो गया हो तो आप बताइए। नहीं बिल्कुल प्रेशर देखें मुझ पे भी है, पूरी कौम पर है, लेकिन दुआ यही है जितने भी इंडिया स्कोर करे, बाहर मोइन भाई ज्यादा अच्छा फवाद भी बता सकते हैं कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया जितने भी बनाए, हमारी दुआ सबकी यही है कि हम उसको चेस कर लें और 18-17 ओवर में हम ये मैच जो है ये इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। रिजवान 150 155? जी बिल्कुल, इससे एक टारगेट तो यही होगा कि इससे ऊपर जो बात ना जा सके, और बिल्कुल 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि फ्रेश टीम उतर रही है, हमारी जो फील्डिंग बॉलिंग साइड है, तो फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी कैच ड्रॉप करना जो है वो फिर आपको मैच जो है आपके हाथों से निकाल सकता है। तो इसलिए उम्मीद है कि क्योंकि प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते जनाब प्रेशर आ गया, भाई आप यही काम कर रहे हैं, आपका यही काम है, तो उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। मोइन भाई किस बैट्समैन पर फोकस करना होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को? आई थिंक ये मेन सारे टॉप ऑर्डर जो टॉप 4 बैट्समैन है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एट टाइम्स जडेजा भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते रहे लोअर ऑर्डर के अंदर, तो मेनली फोकस तो आपके इस पे विराट कोहली है, जिस तरह ओपनर्स हैं रोहित शर्मा है, ये बहुत ही टॉप के प्लेयर, केएल राहुल है। आई थिंक ये जो टॉप 4 है इंडिया के बहुत ही खतरनाक है T20 को लेके। आई थिंक ये मेन फोकस होना चाहिए। अगर ये विकेट्स
लेने में हमारे बॉलर कामयाब हो जाते हैं तो आप ही अंडर प्रेशर कर सकते हैं, अदरवाइज इंडियन बैटिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर करना सही। बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड प्रीवियसली बहुत परफॉर्म कर चुका है, और आईपीएल पिछले 10 साल से जो खेल रहे हैं तो प्रेशर जो है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी टीम वो ज्यादा उस प्रेशर की प्रैक्टिस में है, तो उनके ठीक। लिए इतना मसला नहीं होगा। और ठीक है। मोइन भाई बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने आउट करने पे ही जाना है, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सही। आपने आउट करने जाना है उन्हें। बिल्कुल आउट करने के लिए जाना है, और ट्रांसमिशन यहां पर अपने अख्तिताम को पहुंचती है, और टॉस अब हो चुका है, पाकिस्तानी टीम बॉलिंग करेगी, इंडियन टीम बैटिंग करेगी, और जैसे कि यहां पर हम सब की यही राय है कि पाकिस्तानी टीम को 150-155 के अंदर अंदर भारतीय टीम को महदूद रखना चाहिए अगर पाकिस्तान को ये मैच अपने हक में करना है। वैसे तो ये भी हो सकता है जैसे शहरी ने कहा कि 200 रन बना ले इंडिया वाले और पाकिस्तान वो 15वें ओवर के अंदर चेस कर ले, लेकिन इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तानी टीम आज जीतेगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।